Syllogisms is a type of logical reasoning in which we will derive the conclusion based on the given statements. We have given two or more statements and we have to derive out the conclusion. First, we will assume these statements are true and then we will conclude the conclusion. We have four types of statements in syllogism: all, some, no, and some not. If we have to given the statement all, then the first word's value will be 100 and the second value will be 50. If we have given all pens are pencil, we have given all pens are pencil, so the value of pen will be 100 and the value of pencil will be 50. In case of the statements related to sum, then the value will be 50-50. Some pens are pencil, value of pen will be 50 and value of pencil will also be 50. And the statements related to no, then the value will be 100 and 100. No pens are pencil, so value of pen is 100 and pencil's value is also 100. Some note. In case of the statement related to the word some note, then the value will be 50 and 100. Some pens are not pencil, then the value of pen will be 50 and the value of pencil will be 100. If we have given any positive statement, then the conclusion must be positive. It means if the statement is all and some, then the conclusion will be positive. And if the statement we have given is negative, then the conclusion will always be negative. No positive conclusion can be followed. If we have given two statements, out of them one is positive and second one is negative, then conclusion must be negative. Now we have to derive out the conclusion from the statements. If we have given the statement value will be 100. Now suppose we have given all pens are pencil. Value of pen will be 100. Value of pencil will be 50. And this is the statement we have given. And in case of conclusion, if we have given all pens are pencil, it will be correct. And if we have given all pencils are pen, we know the in case of all value will be 150, so value will be 150. This will be, and now all pencils are pen, then the value of pencil will be 100 and the value of pen will be 50. If the value in the statement is 100, then in conclusion the value can be 100. It means अगर किसी की वैल्यू 100 है तो कंक्लूजन में भी उसकी वैल्यू 100 हो सकती है. अगर किसी भी की वैल्यू अगर 100 है तो कंक्लूजन में उसकी वैल्यू 50 हो सकती है. अगर किसी की वैल्यू 50 है तो कंक्लूजन में उसकी वैल्यू 50 हो सकती है. और अगर किसी की वैल्यू 50 है तो उसकी वैल्यू 100 किसी भी हाल में नहीं होगी. इट मीन्स अगर किसी के पास 100 रुपये है तो वो 100 रुपये खर्च कर सकता है. किसी के पास 100 रुपये है तो वो 50 रुपये भी खर्च कर सकता है. किसी के पास 50 रुपये है ही कैन स्पेंड 50. अगर किसी के पास 50 रुपये है तो वो 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता. नाउ इफ वी हैव गिवन द स्टेटमेंट्स ऑल पेन आर पेंसिल, वैल्यू ऑफ पेन इज 100 एंड इन कंक्लूजन टू value of pencil is 100 and in statement we have value of pencil is 50, so this conclusion will not be follow. So conclusion second will be wrong. And if we have given some pens are pencil, some pens are pencil, it means value of pen will be 50 and value of pencil is also 50. According to statement value of pen is 100. अगर किसी के पास 100 तो he can spend 50, so it means pen can be 50. Correct. Value of pencil is 50. Value of pencil is in the statement is also 50. 50-50 relation is possible. So this can be a solution. And positive statement will always give us a positive conclusion. If the statement is given all pens are pencil,
In statement we have this, then in conclusion, if we have given no pens or pencil, no pens or pencil, this cannot be a solution because there we have positive statement, so conclusion must be positive. This is negative, so conclusion, so this cannot be possible. Positive statements we have all and some, and negative statements we have no and some not. These two type of statements are the negative statements, and the statements having all and some are the positive statements. Now, in some cases, if the common words value is 50, then the case will be of uncertain case. In case of uncertain case, we will eliminate the conclusions. How we will eliminate? Now suppose we have given first statement is all pen or pencil, and the statement 2 is some pencils are marker. It means we have common word is pencil. Value of all will be 150, and value of some will be 50 and 50. Common word is pencil. Value of pencil is 50 in both statements. So this follow a uncertain case. If we have any uncertain case, then we can eliminate the options having the words other than pencil. It means conclusion में pencil word होगा ही होगा. अगर जिस भी conclusion में pencil word नहीं है, common word नहीं है, वो सारे के सारे conclusion गलत होंगे. अब देखो फर्स्ट conclusion अपने पास है all pens are marker, pencil नहीं है तो ये गलत हो जाएगा. सेकेंड all marker है पेन. अनसर्टेन केस में क्या होगा, कॉमन वर्ड जो होगा वो कंक्लूजन में होगा ही होगा. इट मीन्स पेंसिल इज नॉट देयर, रॉन्ग. सम पेन्स आर मार्कर, ये भी कंक्लूजन नहीं होगा. सम मार्कर्स आर पेन, ये भी कंक्लूजन नहीं होगा. ऑल पेंसिल्स आर पेन. अब देखो, अब तीनों, अब पेंसिल्स आर मार्कर और मार्कर्स आर पेंसिल, इन तीनों कंक्लूजन में अपने पास पेंसिल है तो ये ठीक है, कंक्लूजन हो सकते हैं. इसके लिए हम वैल्यू चेक करेंगे. अब दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन हो सकता है, तीनों पॉजिटिव है. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ पेन इज 100, पेंसिल इज 50, मार्कर इज 50. वैल्यू वी नो वैल्यू ऑफ फॉर ऑल इज 150, 150 and 150. Now in case first, all pencil, पेंसिल की वैल्यू अपने पास है 100, लेकिन स्टेटमेंट में अपने पास वैल्यू कितनी है पेंसिल की 50, तो ये नहीं हो सकता, गलत होगा. ऑल पेंसिल्स आर मार्कर, पेंसिल की वैल्यू कितनी है 100, पेंसिल की वैल्यू अपने पास कितनी है 50, तो ये भी सोल्यूशन नहीं हो सकता. 50 तो 50 में सोल्यूशन हो सकता है, 50 का 100 का भी सोल्यूशन हो नहीं सकता. नेक्स्ट अपने पास ऑल मार्कर्स आर पेंसिल, मार्कर की वैल्यू कितनी है 100, लेकिन यहाँ पे मार्कर की वैल्यू अपने पास कितनी है 50, तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा. नेक्स्ट कंक्लूजन्स वी हैव, सम की वैल्यू कितनी होगी 50 50, सम पेंसिल्स आर पेन, सम पेंसिल्स, पेंसिल और पेन की रिलेशन कौन से स्टेटमेंट्स में अपने पास, फर्स्ट में पेंसिल की कितनी है 50, हाँ 50 सोल्यूशन हो सकता है. आर पेन, पेन कितनी है अपने पास 100, 100 का 50 सोल्यूशन हो सकता है, यस, ये कंक्लूजन होगा. सम पेन्स आर पेंसिल, पेन कितनी है, पेन की वैल्यू कितनी है 50, पेन की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन स्टेटमेंट कितनी है 100, 50 में जा सकता है, यस बिल्कुल जा सकता है. नेक्स्ट इज सम मार्कर्स आर पेंसिल, मार्कर की वैल्यू कितनी है अपने पास 50, स्टेटमेंट में कितनी है 50, ठीक है. पेंसिल की वैल्यू कितनी है 50, क्वेश्चन में अपने पास पेंसिल की वैल्यू कितनी है 50, यस दिस कैन ऑल्सो बी सॉल्यूशन. So if we have the common words value is 50, then it will follow a uncertain case, and in uncertain case the conclusion other than the common word will be 100% wrong. So first we will eliminate all the conclusion which do not have the common word. When both statements are negative, this is also a type of uncertain case.
अगर अपने पास दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव दी गई है तो वो भी एक अनसर्टेन केस होगा। अनसर्टेन केस में क्या होगा, कॉमन वर्ड जो होगा उसके अलावा जितने भी कंक्लूजन होंगे वो सारे के सारे गलत होंगे। अब देखो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स अपने पास रॉन्ग है। नो पेन्स आर पेंसिल, नो पेंसिल आर मार्कर, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। दोनों स्टेटमेंट्स नेगेटिव है, कंक्लूजन हमारे पास सिर्फ नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव जितने भी कंक्लूजन होंगे वो वैसे ही गलत हो जाएंगे। ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये गलत हो जाएगा। ऑल मार्कर्स आर पेंसिल, पॉजिटिव है, गलत हो जाएगा। सम पेंसिल आर पेन, गलत हो जाएगा। ऑल पेन्स आर पेंसिल, गलत हो जाएगा। पॉजिटिव तो कंक्लूजन होगा ही नहीं, कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। नाउ case will be uncertain. In case of uncertain case, the conclusions other than the common word will be wrong. तो अपने पास जितने भी पेन और मार्कर्स के जो भी कंक्लूजन होंगे वो गलत होंगे। अब ये पेंसिल और पेन है, मार्कर पेंसिल, पेन नोट पेंसिल, पेंसिल नोट मार्कर्स। अब इसमें अपने पास कोई भी ऐसा कंक्लूजन नहीं है जिसमें कॉमन वर्ड ना हो, तो हम अभी चेक करेंगे इनको। नो की वैल्यू कितनी होगी, 100 100। फर्स्ट इज नो पेंसिल आर पेन, नो की वैल्यू होगी 100 100 100 100। सम नोट की वैल्यू होगी 50 100 50 100। नाउ लेट्स चेक। इन फर्स्ट कंक्लूजन नो पेंसिल्स आर पेन, पेंसिल और पेन की रिलेशन स्टेटमेंट 1 डिफाइन करता है। नो पेंसिल्स आर पेन, पेंसिल की कितनी है अपने पास 100, इधर भी 100 है। पेन्स की कितनी है 100 है, इधर भी 100 है। ठीक है, कंक्लूजन होगा। सेकंड, नो मार्कर्स आर पेंसिल, मार्कर्स की वैल्यू कितनी है 100, क्वेश्चन में अपने पास 100 है। ठीक है, पेंसिल की कितनी है 100 है, क्वेश्चन में भी 100 है। 100 100 कंक्लूजन हो सकता है। सम पेन्स आर नोट पेंसिल, पेन की वैल्यू कितनी है 50, पेन की वैल्यू 100 है, 150 में जा सकता है। आर नोट पेंसिल, पेंसिल की कितनी है अपने पास 100, पेंसिल की स्टेटमेंट में कितनी है 100 100 100 में जा सकता है। ठीक है। सम पेंसिल्स आर नोट मार्कर, पेंसिल की कितनी है 50, क्वेश्चन में पेंसिल की वैल्यू कितनी है 100 हो सकता है। नोट मार्कर्स, मार्कर्स की कितनी है 100, स्टेटमेंट में मार्कर्स की वैल्यू कितनी है 100 100 100 में जा सकता है। दिस कैन बी अ कंक्लूजन। तो इट मीन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव ही कंक्लूजन होगा। अगर अपने पास स्टेटमेंट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इट मीन्स कंक्लूजन नेगेटिव ही होगा। अगर अपने पास कॉमन वर्ड की वैल्यू 50 है और दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या अपने पास है नेगेटिव है, देन अपने पास होगा अनसर्टेन केस। अनसर्टेन केस होगा तो अदर देन कॉमन वर्ड जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे के सारे गलत होंगे। और अपने पास अभी तक क्या कंक्लूजन है, 100 का 100 में आंसर हो सकता है, 100 का 50 भी एक आंसर हो सकता है, 50 का 50 आंसर हो सकता है, और 50 कभी भी 100 में नहीं जा सकता। These are the conclusion till we have studied. Next question we have, no tea is cold, no cold is coffee. अब दोनों की दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट्स नेगेटिव होगी तो अपने पास क्या होगा, अनसर्टेन केस होगा। नो की वैल्यू होगी 100 100, पॉजिटिव कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसमें, नेगेटिव स्टेटमेंट का अपने पास सिर्फ नेगेटिव ही कंक्लूजन होगा। ऑल टी आर कॉफ़ी पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये नहीं हो सकता सॉल्यूशन, और पॉजिटिव है नहीं, और सारे नेगेटिव कंक्लूजन है। अब एक एक को इसमें चेक करते हैं। अनसर्टेन केस है तो कॉमन वर्ड क्या है, कॉफ़ी। जिस भी कंक्लूजन में कॉफ़ी वर्ड नहीं होगा वो गलत होंगे।
कॉमन वर्ड अपने पास है कोल्ड, तो कोल्ड कंक्लूजन में होगा ही होगा। इधर कोल्ड नहीं है तो ये नहीं होगा कंक्लूजन। कॉफ़ी इज टी, कॉफ़ी और टी के जितने भी कंक्लूजन होंगे वो सारे के सारे गलत होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। अपने पास अब दो कंक्लूजन है। नो की वैल्यू होगी 100, सम नोट की वैल्यू होगी 50, अब नो कोल्ड इज टी, नो कोल्ड इज टी अपने पास फर्स्ट स्टेटमेंट से टी और कोल्ड की रिलेशन, कोल्ड की वैल्यू कितनी 100, टी की वैल्यू कितनी 100 में जाएगा, सही है। सम कॉफ़ी इज नॉट कोल्ड, कॉफ़ी की वैल्यू कितनी 50, स्टेटमेंट में अपने पास कॉफ़ी की वैल्यू 100, इज नॉट कोल्ड, कोल्ड की वैल्यू 100, इधर भी है 100 में जा सकता है और 150 में भी जा सकता है, होगा। तो यानी कि कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड विल बी आंसर। कुछ कंक्लूजन्स में अपने पास ऑप्शन होते हैं आइदर और केस। वी हैव गिवन द ऑप्शंस, दैट इज कंक्लूजन 2 विल बी फॉलो एंड आइदर 1 और 3 कैन बी ए सॉल्यूशन, आइदर 3 और 5 कैन बी ए सॉल्यूशन। हाउ टू कंक्लूड दिस क्वेश्चंस? आइदर और के केस बनने के लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी। कौन कौन सी? इफ़ बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, 2 कंक्लूजन है अपने पास, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। अब मान लो अपने पास कंक्लूजन है ऑल पेन्स आर पेंसिल, दिस आर द कंक्लूजन, एंड सम पेंसिल्स आर मार्कर। अब देखो पिछले क्वेश्चन से हमने उठा लिया ये, ऑल पेन्स आर पेंसिल, सम पेंसिल्स आर पेन, अपने पास गलत है। ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन गलत भी क्यों भी होंगे? क्योंकि पेंसिल की वैल्यू कितनी है 50, कॉमन वर्ड कितना है 50 होगा, तो फिर जो पेन और मार्कर के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे के सारे गलत होंगे। तो नो पेन सारा मार्कर, ये तो सॉल्यूशन कभी हो ही नहीं सकता। इधर भी मार्कर और पेन का सॉल्यूशन है, ये भी कभी नहीं होगा, क्योंकि अनसर्टेन केस में क्या है, जो कॉमन वर्ड है वो कंक्लूजन में होगा ही होगा। अब ये दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या है? गलत है। तो आइदर और केस के लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी। फर्स्ट कि 2 सॉल्यूशन होंगे और दोनों के दोनों ही कंक्लूजन क्या होंगे? रॉन्ग होंगे, दोनों गलत है। दिस इज द स्टेटमेंट्स वी हैव। सेकंड कंडीशन क्या होगी? एक कंक्लूजन जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन क्या है? नेगेटिव होना चाहिए। अब इसमें अपने पास नो पेन्स आर मार्कर, ये नेगेटिव कंक्लूजन है। सम मार्कर्स आर पेन्स, ये अपने पास पॉजिटिव कंक्लूजन है। एक नेगेटिव कंक्लूजन भी होगा, एक पॉजिटिव कंक्लूजन भी होगा। थर्ड क्या कंडीशन होनी चाहिए आइदर और केस फॉलो करने के लिए? कि जो वर्ड्स है ना वो दोनों के दोनों कंक्लूजन में सेम होने चाहिए। इधर भी पेन और मार्कर का कंक्लूजन है, इधर भी मार्कर और पेन का कंक्लूजन है। तो आइदर और के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होंगी, 2 सॉल्यूशन होंगे, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, और वर्ड्स जो है वो सेम होने चाहिए दोनों कंक्लूजन्स में। और अगर अपने पास कोई भी स्टेटमेंट है ऑल और नो से रिलेटेड, 2 स्टेटमेंट्स अपने पास दी गई है, तो वो कभी भी आइदर और का केस फॉलो कभी भी नहीं होगा उनमें। जैसे अपने पास अगर क्वेश्चन होता ऑल पेन्स आर पेंसिल एंड नो पेंसिल आर मार्कर, इस तरह की अगर अपने पास 2 स्टेटमेंट है तो इन स्टेटमेंट्स में कभी भी आइदर और का केस फॉलो नहीं होगा। अब अपने पास क्वेश्चन है ऑल लैपटॉप्स आर टैबलेट, ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट, 2 स्टेटमेंट्स अपने पास गिवन है। अब कॉमन वर्ड क्या है? टैबलेट। ऑल की वैल्यू कितनी होगी 150, हियर ऑल्सो 150। कॉमन वर्ड टैबलेट, टैबलेट की वैल्यू कितनी है 50 है, तो क्या होगा? अनसर्टेन केस होगा। अनसर्टेन केस होगा, इट मीन्स अदर देन द कंक्लूजन हैविंग द वर्ड टैबलेट विल बी रॉन्ग। अब जिस भी कंक्लूजन में टैबलेट ऑप्शन वर्ड नहीं होगा वो कंक्लूजन गलत होगा। इधर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑल टैबलेट्स है इसमें, लैपटॉप्स होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। 2 कंक्लूजन गलत हो जाएंगे क्योंकि टैबलेट आना चाहिए कंक्लूजन में। सेकंड वी हैव लेट्स चेक द अदर ऑप्शंस। दोनों स्टेटमेंट्स के अपने पास पॉजिटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कंक्लूजन अपने पास
है, फिफ्थ नेगेटिव दिया गया है, तो नेगेटिव कंक्लूजन तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि स्टेटमेंट्स दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कंक्लूजन सारे के सारे पॉजिटिव ही होंगे। नेक्स्ट अपने पास अब है दो स्टेटमेंट्स। ऑल टैबलेट्स आर मोबाइल। टैबलेट्स और मोबाइल की रिलेशन कहाँ सेकंड स्टेटमेंट इस्टेब्लिश करता है, टैबलेट्स और मोबाइल। अब ऑल की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 150, टैबलेट्स की वैल्यू कितनी है 50, इधर कितनी है 100, तो इस कैन नॉट बी अ सोल्यूशन क्योंकि 50 तो सिर्फ 50 का कंक्लूजन सिर्फ 50 ही हो सकता है। नेक्स्ट कंक्लूजन वी हैव इज सम लैपटॉप्स आर टैबलेट। सम की वैल्यू कितनी होगी 50-50, सम लैपटॉप्स आर टैबलेट। लैपटॉप और टैबलेट की रिलेशन कहाँ से इस्टेब्लिश होती है, फर्स्ट स्टेटमेंट में। फर्स्ट स्टेटमेंट में लैपटॉप की वैल्यू कितनी है 100, 100 50 में जा सकता है, ठीक है। टैबलेट्स की वैल्यू कितनी है 50, 50 में जा सकता है। इट मीन्स कंक्लूजन 4 इज करेक्ट। 4 फॉलोज। अब अपने पास आइदर और के लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए, दो कंक्लूजन होने चाहिए, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। अब अपने पास 4 कंक्लूजन गलत हैं, उनमें कॉमन वर्ड सेम होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। अब कॉमन वर्ड किस किस में सेम है, लैपटॉप मोबाइल, लैपटॉप मोबाइल। अब फर्स्ट और थर्ड, अगर हम फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन देखें तो अपने पास क्या है, कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड क्या है, लैपटॉप मोबाइल, लैपटॉप मोबाइल। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि आइदर और किसका, आइदर और फॉलो करेगा। तो इट मीन्स अपने पास आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ऑप्शन 4 विल बी फॉलो, ऑप्शन 4 फॉलोज आइदर थर्ड, आइदर वन और थर्ड। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम टी आर नॉट ए, नो ए आर टी। अब दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो भी वो क्या होगा, अनसर्टेन केस होगा। अनसर्टेन केस होगा तो जो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड क्या है इसके अंदर, ए। जिस भी कंक्लूजन में ए नहीं होगा वो सारे के सारे गलत होंगे, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। नेक्स्ट, सम की वैल्यू कितनी होगी, अब दोनों स्टेटमेंट एक पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन सारे नेगेटिव होने चाहिए। फर्स्ट भी नेगेटिव है, सेकंड भी नेगेटिव है, फोर्थ भी नेगेटिव है। सम की वैल्यू कितनी होगी 50, सम नोट की वैल्यू 50 100 और नो की वैल्यू 100 100। अब कंक्लूजन फर्स्ट है नो ए आर टी, नो ए आर टी, नो की वैल्यू कितनी होगी 100 100। ए और टी की रिलेशन कहाँ से स्टैब्लिश होती है, फर्स्ट से। फर्स्ट में ए और टी की रिलेशन है, टी कितना है 50, 50 100 में जाएगा नहीं। ए की वैल्यू कितनी है 100, 100 में जा सकता है, लेकिन टी की वैल्यू कितनी है 50 है, 50 100 में नहीं जा सकता। सेकंड कंक्लूजन, नो ए आर टी, नो की वैल्यू कितनी होगी 100 100। अब ए की वैल्यू कितनी है 100, ठीक है, ए 100 100 में जा सकता है। टी की वैल्यू कितनी है 100, स्टेटमेंट में कितनी है 50, 50 100 में नहीं जा सकता, ये भी नहीं होगा कंक्लूजन। फोर्थ इज नो के आर टी, नो की वैल्यू कितनी होगी 100 100, के की वैल्यू कितनी है 100 है, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 100, आई की वैल्यू 100 है, ये सही होगा, यानी कि ऑप्शन 4 फॉलोज। अब आइदर और केस में अपने पास क्या होना चाहिए, कॉमन वर्ड होने चाहिए, टी ए टी, ये तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, एक नेगेटिव होनी चाहिए एक पॉजिटिव होनी चाहिए। थर्ड और फिफ्थ स्टेटमेंट टी की एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों गलत हैं, कॉमन वर्ड है, तो इट मीन्स आइदर और पॉसिबिलिटी होगी, तो ऑप्शन 4 फॉलोज एंड आइदर 3 और 5, दिस इज आंसर इन केस ऑफ आइदर और।
अब हो सकता है अपने पास क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। अब 2 स्टेटमेंट्स के लिए हमने कर लिए, 3 स्टेटमेंट्स के लिए कैसे करेंगे? पहले 2 स्टेटमेंट्स ले लेंगे, फिर दूसरी तीसरी लेंगे और फिर पहली और तीसरी की रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। अब अगर मान लो अपने पास पहली और दूसरी स्टेटमेंट सर्टेन है और दूसरी और तीसरी भी सर्टेन है, तो पहली और तीसरी सर्टेन होगी ही होगी। फर्स्ट और सेकंड सर्टेन है, सेकंड और थर्ड भी सर्टेन है। दिस विल इम्प्लाइज फर्स्ट और थर्ड भी सर्टेन होगी। अब फर्स्ट और सेकंड अनसर्टेन है, सेकंड और थर्ड सर्टेन है, तो फर्स्ट और थर्ड का जो रिलेशन होगा वो अनसर्टेन होगा। अगर दोनों सर्टेन है तो कंक्लूजन सर्टेन होगा, अगर एक भी अनसर्टेन होगी तो अनसर्टेन केस ही बनेगा। अगर दोनों अनसर्टेन है, फर्स्ट और सेकंड भी अनसर्टेन है और सेकंड और थर्ड भी अनसर्टेन है, तो फर्स्ट और थर्ड भी अनसर्टेन ही होगी। अब अपने पास क्वेश्चन है कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर डी। अब कॉमन वर्ड क्या है? बी। बी की वैल्यू इधर की 100, ऑल की वैल्यू कितनी होगी? 150, 150, 150। अब ऑल बी आर डी, ऑल डी आर ई। अब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड क्या है? डी। डी की वैल्यू कितनी है? 50, 100, तो सर्टेन होगा। अगर पहली दूसरी सर्टेन है, दूसरी और तीसरी भी सर्टेन है, तो पहली और तीसरी भी सर्टेन होगी। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। अब तीनों की सारी पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन होंगे, नेगेटिव इसका कंक्लूजन होगा नहीं। नेक्स्ट, फर्स्ट कंक्लूजन अपने पास है ए और डी। ए और डी की रिलेशन कौन इस्टेब्लिश करता है? फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। ऑल की वैल्यू कितनी होगी? 150, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 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 150, सम 50-50, ऑल 150 and sum 50-50. Conclusion 1 is all ARD। फर्स्ट और सेकंड में ए की वैल्यू कितनी है? 100 है, ठीक है, 100 में जा सकते हैं। ठीक है, 100 में जा सकते हैं। डी की वैल्यू कितनी है? 50, इधर भी कितनी है? 50, ठीक है, ये जा सकता है, सही होगा। सम ARD, सम की वैल्यू कितनी होगी? 50-50। ए कितना है? 50, डी कितना है? 50, ठीक है, 150 में जा सकता है, 50-50 में जा सकते हैं, ये भी सही है, ये भी फर्स्ट और सेकंड से अपने पास आ गया। ऑल बी आर ई, बी और ई की रिलेशन कहाँ से आती है अपने पास? ए और डी की रिलेशन अपने पास है फर्स्ट और सेकंड में, और बी और ई की रिलेशन है सेकंड और थर्ड में, और ए और ई की रिलेशन डिफाइन करता है अपने पास फर्स्ट एंड थर्ड। जो कॉमन वर्ड्स होंगे वो कट जाएंगे। अब ऑल बी आर ए, बी, ऑल बी की वैल्यू कितनी है? 100, ई की वैल्यू कितनी है? 50। ये अपने पास आएगा सेकंड और थर्ड से, क्योंकि सेकंड थर्ड में डी कॉमन है, एलिमिनेट हो जाएगा, तो अपने पास रिलेशन आएगी बी और ई वर्ड की, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट अपने पास है सम बी आर ई, बी की वैल्यू कितनी है? 100, ई की कितनी है? 50। बी और ई की रिलेशन अपने पास सेकंड और थर्ड से ही, ठीक है, ये कंक्लूजन हो सकता है। नेक्स्ट है ऑल ए आर ई, ए और ई की रिलेशन कौन डिफाइन करता है? फर्स्ट और थर्ड। ए की वैल्यू कितनी है? 100, थर्ड में ए की वैल्यू कितनी है? 50, ठीक है, 150 में जा सकता है, ये सही होगा। सम ए आर ई, ए की वैल्यू कितनी है? 50, ई की कितनी है? 50, ठीक है, 50-50 में जा सकता है, 150 में चला जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है ऑल डी आर ए। अब डी और ए की रिलेशन कहाँ से डिफाइन होती है? अपने पास फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड से अपने पास आया डी की वैल्यू कितनी थी? 50, लेकिन यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी? 100। 50 कभी भी 100 में नहीं जा सकता, ये गलत हो जाएगा।
सम डी आर ए, डी की वैल्यू कितनी होगी 50 और ए की 50। अब फर्स्ट और सेकंड से ए की वैल्यू कितनी है 50, डी की कितनी है 50, ठीक है 50-50 में ये जा सकता है। नेक्स्ट इज ऑल ई आर बी, बी और ए की रिलेशन कहाँ से डिफाइन होते हैं अपने पास, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से। ऑल ई की वैल्यू कितनी आ गई 100, लेकिन ई की वैल्यू कितनी है 50 है, तो ये तो 100 में जा नहीं सकता, गलत होगा। नेक्स्ट अपने पास है सम ई आर बी, बी और ए की रिलेशन सेकंड एंड थर्ड से। ई की कितनी है 50, ई की कितनी है 50, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है 50, इधर है 100, 100 50 में जा सकता है, ठीक है ये सोल्यूशन होगा। ऑल ई आर ई की वैल्यू कितनी है 100, ई और ए की रिलेशन कौन डिफाइन करता है, फर्स्ट और थर्ड। अब इसमें दिया हुआ ऑल ई की वैल्यू कितनी है थर्ड में 50 है, ए की कितनी है 100, ये गलत होगा, 50 तो कभी 100 में जा नहीं सकता। सम ई आर ए, ई और ए की रिलेशन कौन डिफाइन करता है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट, तो हम फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे। तो सम ई आर ए, ई की कितनी है 50, थर्ड स्टेटमेंट में ई की कितनी है 50, ठीक है। आर ए हमारे पास होगा फर्स्ट स्टेटमेंट से, फर्स्ट में ए की वैल्यू 100, इधर है 50, 100 50 में जा सकता है, ठीक है जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल के आर आर, सम के आर एच एंड सम एच आर पी। अब पहली दो स्टेटमेंट्स में अपने पास के कॉमन है और सेकंड और थर्ड में अपना कॉमन है एच, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड अपने पास रिलेशन किस किस का डिफाइन करेगी, आर और एच का, और सेकंड और थर्ड से अपने पास रिलेशन आएगा के और पी का, और फर्स्ट और थर्ड से आएगा जो जो कॉमन वर्ड होंगे वो कट जाएंगे, के से के कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, आर और पी के लिए। अब देखते हैं सर्टेन होगा अनसर्टेन होगा। फर्स्ट और सेकंड कॉमन वैल्यू वर्ड इज के की वैल्यू इधर कितनी है 100, और 50 कॉमन वर्ड, तो ये क्या होगा सर्टेन होगा। सेकंड और थर्ड में कॉमन वर्ड है एच की वैल्यू कितनी है 50-50, तो अगर 50-50 ये क्या होगा अनसर्टेन केस होगा। अनसर्टेन केस होगा, एक सर्टेन है एक अनसर्टेन है, तो जो फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन होगा वो भी क्या होगा अनसर्टेन होगा। इस अब देखो सेकंड और थर्ड अनसर्टेन है, सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या है एच है अपने पास, इट मीन्स के और पी के जितने भी रिलेशन होंगे वो सारे के सारे गलत होंगे, के और पी। ये कंक्लूजन नहीं हो सकता के और पी का, और ये भी कंक्लूजन नहीं होगा क्योंकि कॉमन वर्ड एच है, एच की वैल्यू 50-50 है, तो कॉमन वर्ड के अलावा कुछ सॉल्यूशन कभी होगा नहीं, के और पी के कभी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब फर्स्ट और थर्ड में अपने पास कॉमन वर्ड के से के कैंसिल हो जाएगा, एच से एच एलिमिनेट हो जाएगा, अपने पास वर्ड बचा आर और पी, इट मीन्स आर और पी का भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आर पी ये भी कंक्लूजन नहीं होगा। अब अपने पास बचे दो कंक्लूजन, सम आर एच। अब हमें कंक्लूजन निकालना आर और एच के लिए अपने पास कहाँ से आएगा कंक्लूजन, फर्स्ट और सेकंड से। सम की वैल्यू कितनी होगी 50-50 और ऑल की वैल्यू कितनी होगी 150। सम आर एच, फर्स्ट और सेकंड से अपने पास आर की वैल्यू कितनी है 50, एच की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है 50-50 में जाएगा, 50-50 में जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन वी हैव इज ऑल एच आर एच और आर की रिलेशन हमारे पास कहाँ से आती है, फर्स्ट और सेकंड से ही। फर्स्ट में एच की वैल्यू कितनी है 50, इधर कितनी है 100, 50-100 में कभी नहीं जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो अपने पास एक ही कंक्लूजन सही होगा। Now let's solve some questions. First question, we have three statements. All pens are pencil. All pens are pencil.
ऑल की वैल्यू कितनी होगी 150, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 150। अब देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में अपने पास कॉमन है पेंसिल, पेंसिल इज कॉमन, और सेकंड और थर्ड में अपने पास कॉमन है इरेजर। फर्स्ट और सेकंड में अपने पास कॉमन वर्ड है, फर्स्ट और सेकंड पेंसिल कॉमन है, कॉमन की वैल्यू कितनी है, पेंसिल की वैल्यू 50-50, कॉमन वर्ड की अगर वैल्यू 50-50 होगी तो वो क्या होगा, अनसर्टेन केस होगा। अब अनसर्टेन केस होगा तो पेंसिल एलिमिनेट हो जाएगा, पेन और इरेजर के जितने भी कंक्लूजन होंगे वो सारे गलत होंगे, पेन और इरेजर का कोई कंक्लूजन है नहीं है, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड क्या है, इरेजर, इरेजर की वैल्यू कितनी है 50 और 100, यानी कि ये क्या होगा, सर्टेन होगा। अब एक अनसर्टेन है एक सर्टेन है, तो फर्स्ट और थर्ड क्या होगा, अनसर्टेन होगा, फर्स्ट और थर्ड अनसर्टेन होगा, तो फर्स्ट और थर्ड से अपने पास रिलेशन किसकी आ रही है, पेन की और बुक्स की, पेन और बुक्स के जितने भी रिलेशन होंगे वो गलत होंगे। पेन और बुक्स का कोई कंक्लूजन है, हाँ सेकंड दे रखा है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पेन और बुक्स, ठीक है, एक ही कंक्लूजन दिया हुआ है। अब ऑल की वैल्यू कितनी होगी 150, सम की वैल्यू कितनी होगी 50-50। अब पहला कंक्लूजन है ऑल बुक्स आर इरेजर। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से अपने पास कंक्लूजन आएगा, पेंसिल से पेंसिल कैंसिल हो जाएगा, पेन और इरेजर का, इधर से आएगा पेन और इरेजर, और सर्टेन केस अगला इरेजर से इरेजर कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से अपने कंक्लूजन आएगा पेंसिल और बुक्स का, और फर्स्ट और थर्ड से अपने पास कंक्लूजन आएगा पेन और बुक्स का। अब फर्स्ट कंक्लूजन हमें दे रखा है बुक और इरेजर, बुक और इरेजर के लिए, बुक और इरेजर है अपने पास थर्ड स्टेटमेंट में, ऑल बुक्स आर इरेजर, बुक्स की वैल्यू थर्ड में कितनी है 50, इधर कितनी है 100, तो ये तो कंक्लूजन हो ही नहीं सकता, 50 तो कभी 100 भी जाएगा नहीं, अगर किसी पे 50 रुपये वो 100 रुपये तो खर्च कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट कंक्लूजन वी हैव इज सम पेंसिल्स आर बुक, पेंसिल और बुक के लिए कौन सी रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, पेंसिल और बुक्स के लिए अपने पास सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट। अब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से पेंसिल की वैल्यू कितनी है, पेंसिल की वैल्यू है 50, ठीक है, 50-50 में चला जाएगा, बुक्स की वैल्यू कितनी है 50-50 में चला जाएगा, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, सही, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पेन्स आर पेंसिल, ऑल इरेजर्स आर बुक, ऑल बुक्स आर पेंसिल आर पेन्स। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रखा है, अगर ये वाली स्टेटमेंट हम यहाँ लिख लेते हैं तो इजी हो जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन वैसे फ्रेम किए गए, हम नॉर्मली सोल्व करते हैं इसको। अब देखो कॉमन वर्ड सेकंड और थर्ड में कॉमन वर्ड है बुक्स, तो इट मीन्स अपने पास कॉमन वर्ड की वैल्यू कितनी है, इधर होगी 100, 50, 100, 50, कॉमन वर्ड इधर से क्या है बुक्स, बुक्स की वैल्यू कितनी है 50, तो यानी कि क्या होगा, सर्टेन होगा। अब पहले और दूसरे में कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन वर्ड है अपने पास पेन, पेन की वैल्यू कितनी है, इधर 100 है और उधर 50 है, 100 और 50 है कॉमन वर्ड की वैल्यू, तो इट मीन्स ये भी क्या होगा, सर्टेन होगा। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सर्टेन है, फर्स्ट और थर्ड सर्टेन है, सर्टेन कंक्लूजन होने के लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट और सेकंड भी सर्टेन ही होगी तभी सर्टेन हो सकता है। अगर ये अनसर्टेन होती है फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और थर्ड को अनसर्टेन होना पड़ता है, यानी कि सेकंड और थर्ड सर्टेन है, फर्स्ट और थर्ड सर्टेन है, इट मीन्स फर्स्ट और सेकंड भी सर्टेन ही होगी। कंक्लूजन देखते हैं, फर्स्ट इज ऑल पेंसिल आर बुक्स,
अब फर्स्ट और थर्ड से पेन कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड से अपने पास कौन सा कंक्लूजन आएगा? पेंसिल से पेन से पेन गए, पेंसिल और बुक्स, पेंसिल और बुक्स के जितने भी कंक्लूजन होंगे फर्स्ट और थर्ड से आएंगे। और फर्स्ट सेकंड और थर्ड से अपने पास कंक्लूजन आएगा, बुक्स से बुक्स कैंसिल हो जाएगा, इरेजर और पेन। और फर्स्ट और सेकंड से अपने पास कंक्लूजन आएगा इरेजर और पेंसिल। फर्स्ट कंक्लूजन अपने पास ऑल की वैल्यू कितनी होगी? 150, 150, 150, 150। अब ऑल पेंसिल्स आर बुक, पेंसिल और बुक की रिलेशन कौन डिफाइन करता है? फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट। अगर अपन फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो पेंसिल की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट में पेंसिल की तो वैल्यू 50 है, 50 कभी भी 100 में नहीं जा सकता, या तो पेंसिल की वैल्यू 100 है, तो ये गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट ऑल बुक्स आर पेंसिल, बुक्स और पेंसिल की रिलेशन कौन डिफाइन करता है? फर्स्ट और थर्ड। अगेन ऑल बुक्स आर पेंसिल, फर्स्ट और थर्ड डिफाइन करता है। फर्स्ट ऑल बुक्स, बुक्स की वैल्यू कितनी है फर्स्ट और थर्ड में? बुक्स की वैल्यू 100 है, ठीक है। पेंसिल की वैल्यू कितनी है? 50, पेंसिल की कितनी है? 50, ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट में पास ऑल इरेजर्स आर पेंसिल, इरेजर और पेंसिल की रिलेशन कौन डिफाइन करता है? फर्स्ट और सेकंड। इरेजर की वैल्यू कितनी है फर्स्ट और सेकंड में? 100, ठीक है, 100 100 में चला जाएगा। पेंसिल की वैल्यू कितनी है? 50 50 50 में चला जाएगा, ठीक है, ये सही है। फोर्थ अपने पास था ऑल इरेजर्स आर पेन, इरेजर और पेन की रिलेशन कौन डिफाइन करता है? सेकंड और थर्ड। सेकंड में इरेजर की वैल्यू कितनी है? 100, इधर भी 100 है। पेन की वैल्यू कितनी है? 50, इधर भी 50 है, ठीक है, ये कंक्लूजन होगा। इट मीन्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर द कंक्लूजन, ओनली 2 3 एंड 4 फॉलोज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट सम hens आर गोट, सम goats आर काउ, all cows आर डॉग्स। पहले वैल्यू लिख लेते हैं, 50 50 50 50 और 100, ऑल की वैल्यू होगी 150। अब कॉमन वर्ड कौन कौन से अपने पास? पहली दो में कॉमन वर्ड है गोट्स, और सेकंड और थर्ड में अपने पास कॉमन वर्ड है काउ। इट मीन्स फर्स्ट और सेकंड में कॉमन वर्ड है गोट, गोट की वैल्यू कितनी है? 50 50, यानी कि क्या होगा? अनसर्टेन होगा। अगर ये केस अनसर्टेन होगा तो जितने भी हैन और काउ के रिलेशन होंगे वो गलत होंगे, क्योंकि गोट से गोट एलिमिनेट हो जाएगा। इट मीन्स हैन और काउ के कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। हैन और काउ का कोई कंक्लूजन है अपने पास? हाँ, सेकंड वन है, नहीं होगा। अब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में अपने पास कॉमन वर्ड है काउ, काउ की वैल्यू कितनी है? 50, तो ये क्या होगा? सर्टेन होगा, सर्टेन होगा। और कंक्लूजन अपने पास आएगा इधर से गोट और डॉग्स का। अब एक अनसर्टेन है, एक सर्टेन है, तो फर्स्ट और थर्ड भी अनसर्टेन ही होंगी। अब फर्स्ट और थर्ड अगर अनसर्टेन होगी तो कॉमन वर्ड्स गोट एंड काउ थे। इट मीन्स हैन और डॉग के जो भी रिलेशन होगा, हैन और डॉग के कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। हैन और डॉग के जो भी कंक्लूजन है वो गलत होंगे, ये नहीं होगा। हैन और कंक्लूजन है? नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट कंक्लूजन अपने पास है सम डॉग्स आर गोट, सम डॉग्स आर गोट। गोट और डॉग का रिलेशन अपने पास आता है सेकंड और थर्ड से। सम की वैल्यू कितनी होगी? 50 50। सेकंड और थर्ड में गोट की वैल्यू कितनी है? 50, ठीक है, 50 50 में चला जाएगा। डॉग की वैल्यू कितनी है? 50 50 50 में चला जाएगा, ठीक है, ये कंक्लूजन होगा। फोर्थ कंक्लूजन सम गोट्स आर डॉग, गोट्स और डॉग की रिलेशन कौन डिफाइन करता है? सेकंड और थर्ड। गोट्स की वैल्यू कितनी है? 50, स्टेटमेंट 2 में भी 50 है। डॉग्स की वैल्यू कितनी है? 50, स्टेटमेंट 3 में डॉग्स की वैल्यू 50 है, ठीक है, ये भी सही होगा।
यानी कि फर्स्ट और फोर्थ सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, some bats are ball, some hockeys are badminton, some badmintons are balls। इधर भी थर्ड जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट दी गई है। अब पहले अपने पास सेकंड और थर्ड में कॉमन वर्ड है बैडमिंटन, बैडमिंटन कॉमन वर्ड है, और फर्स्ट और थर्ड में अपने पास कॉमन वर्ड है बॉल। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। बैट की वैल्यू, सम की वैल्यू कितनी होगी 50 50, सम की वैल्यू 50 50 50 50। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कॉमन वर्ड है बैडमिंटन, वर्ड की वैल्यू कितनी है 50, ये क्या होगा अनसर्टेन होगा। अनसर्टेन होगा तो इट मीन्स हॉकी और बॉल्स की जो भी रिलेशन होंगी वो सारी की सारी गलत होंगी। हॉकी और बॉल्स की रिलेशन गलत होंगी, हॉकी और बॉल्स ये कट जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड से अपने पास फर्स्ट और थर्ड में अपने पास कॉमन वर्ड है बॉल, उसकी वैल्यू कितनी है, इधर भी 50 है अपने पास और इधर भी 50 है। अगर कॉमन वर्ड की वैल्यू 50 है, ये भी क्या होगा अनसर्टेन होगा। अनसर्टेन होगा तो कॉमन वर्ड के अलावा जो भी सोल्यूशन होंगे वो गलत होंगे, यानी कि बैट और बैडमिंटन, बैट और बैडमिंटन, बैट और बैडमिंटन के जितने भी रिलेशन होंगे वो गलत होंगे। बैट और बैडमिंटन ये गलत होगा। अब अगर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट अनसर्टेन है, फर्स्ट और थर्ड भी अनसर्टेन है, तो जिसमें कॉमन वर्ड नहीं है वो भी तो अनसर्टेन होगी। अब अगर अपने पास फर्स्ट और सेकंड इसमें कॉमन वर्ड है, अगर सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट अनसर्टेन है, फर्स्ट और थर्ड अनसर्टेन है, तो इट मीन्स फर्स्ट और सेकंड भी तो अनसर्टेन है ना, कॉमन वर्ड हटा दें तो अपने पास आ गया फर्स्ट और सेकंड भी अनसर्टेन होगी। अगर फर्स्ट और सेकंड अनसर्टेन होगी तो कॉमन वर्ड्स के अलावा कौन कौन से बचेंगे अपने पास, बॉल्स कॉमन हो गया, बैडमिंटन कॉमन हो गया, अपने पास बचा बैट और हॉकी। इट मीन्स बैट और हॉकी की जो भी रिलेशन होंगी वो भी सारी की सारी गलत होंगी। बैट और हॉकी, सम हॉकीज आर बैट, ये भी गलत हो जाएगी। बॉल्स और बैट, बॉल्स और बैट की रिलेशन अपने पास आएगी बॉल्स, ऑल बॉल्स आर बैट, ये अपने पास है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 में वैल्यू है 50-50, ऑल की वैल्यू क्या होगी 150। अब स्टेटमेंट 1 में अपने पास बॉल्स कितनी है 50 100 में जा सकता है, नहीं जा सकता, ये भी नहीं होगा। तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, नन फॉलोज, कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अपने पास, नो रोजेज आर ट्यूलिप्स, सम लोटस आर मैरीगोल्ड, सब ऑल मैरीगोल्ड्स आर ट्यूलिप्स। अब सेकंड और थर्ड में अपने पास कॉमन वर्ड है मैरीगोल्ड, सम की वैल्यू कितनी होगी 50-50, नो की वैल्यू इज 100, सम की 50-50, ऑल मीन्स 150। अब इसमें कॉमन वर्ड है मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड की वैल्यू कितनी है 50 और 100, इट मीन्स ये क्या होगा सर्टेन होगा, सर्टेन होगा। और अपने पास रिलेशन आएगी
लोटस एंड ट्यूलिप्स की। अब फर्स्ट और थर्ड में अपने पास कॉमन वर्ड है, फर्स्ट और थर्ड में अपने पास कॉमन वर्ड है ट्यूलिप्स। जिसकी वैल्यू अपने पास है 150। 100 और 50 है इसकी वैल्यू, इट मीन्स ये भी सर्टेन होगा, ये भी सर्टेन होगा। अब एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। फर्स्ट और थर्ड से अपने पास रिलेशन किसकी आएगी? ट्यूलिप्स से ट्यूलिप्स कैंसिल हो जाएगा, रोज और मैरीगोल्ड। फर्स्ट और थर्ड से सर्टेन कंक्लूजन होगा, नेगेटिव ही कंक्लूजन होंगे रोज और मैरीगोल्ड के। इट मीन्स रोज और मैरीगोल्ड जहां भी होगा वो सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन ही होगा। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ये भी सर्टेन है, सेकंड और थर्ड भी सर्टेन है, फर्स्ट और थर्ड भी सर्टेन है। इट मीन्स फर्स्ट और सेकंड भी क्या होंगी? सर्टेन होंगी, सर्टेन होंगी, नेगेटिव कंक्लूजन होगा, और वर्ड्स होंगे फर्स्ट और थर्ड में ट्यूलिप से ट्यूलिप्स गया, मैरीगोल्ड से मैरीगोल्ड गया, रोजेस और लोटस। अब रोजेस और लोटस के जितने भी कंक्लूजन होंगे वो नेगेटिव होंगे। रोज और लोटस का ये तो पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए, ये पॉजिटिव है। ट्यूलिप्स, अब ट्यूलिप्स और लोटस सर्टेन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये तो पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए था, इधर नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव है, होना तो पॉजिटिव चाहिए, ये भी कंक्लूजन नहीं होगा। अपन पास है दो स्टेटमेंट, सम की वैल्यू कितनी होगी? 50-50, ऑल की वैल्यू 150। सम ट्यूलिप्स आर मैरीगोल्ड, ट्यूलिप और मैरीगोल्ड की रिलेशन अपने पास है, ट्यूलिप्स एंड मैरीगोल्ड, ट्यूलिप्स, ये स्टेटमेंट थर्ड। मैरीगोल्ड की वैल्यू कितनी है? 100-150 में जा सकता है, ठीक है जा सकता है। ट्यूलिप्स की वैल्यू कितनी है? 50-50 में जा सकता है, सही होगा। थर्ड स्टेटमेंट, ऑल लोटसेस आर ट्यूलिप्स, ट्यूलिप्स और लोटस की रिलेशन अपने पास है सेकंड और थर्ड से। सेकंड और थर्ड में लोटस की वैल्यू अपने पास है 50, ये बोल रहा है ऑल लोटस, यानी कि लोटस 100 में जा सकता है? नहीं, ये आंसर नहीं होगा, यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है कैट, सेकंड और थर्ड में कॉमन है रैट, इट मीन्स ऑल की वैल्यू 150, नो की वैल्यू 100। कैट इज 50, कैट इज 100, रैट इज 50, रैट इज 100, यानी कि सारी की सारी क्या होंगी? सर्टेन होंगी। अब फर्स्ट और सेकंड पॉजिटिव है, इधर से अपने पास आएगा पॉजिटिव कंक्लूजन, सेकंड और थर्ड नेगेटिव है, इधर से अपने पास आएगा नेगेटिव कंक्लूजन। इट मीन्स फर्स्ट और थर्ड से अपने पास कौन सा कंक्लूजन आएगा? ये भी नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। पॉजिटिव कंक्लूजन अपने पास होगा डॉग एंड रैट का। नेगेटिव कंक्लूजन अपने पास होगा कैट एंड काउ। और फर्स्ट और थर्ड से नेगेटिव कंक्लूजन होगा डॉग एंड काउ। इट मीन्स
फर्स्ट इज सम की वैल्यू होगी 50-50, सम रैट्स आर कैट्स, ठीक है 50-50 होगा, सम की वैल्यू 50-50, 50-50, नो की वैल्यू होगी 100-100। रैट्स और कैट की रिलेशन अपने पास है, रैट और कैट स्टेटमेंट 2 से। स्टेटमेंट 2 में कैट की वैल्यू कितनी है 100, 150 में जा सकता है, ठीक है जा सकता है। रैट की कितनी 50-50 में जा सकता है, सही होगा। सम कैट्स आर डॉग्स, कैट और डॉग की रिलेशन कौन डिफाइन करता है, फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में डॉग की कितनी है 50, 100 है, 150 में जा सकता है। कैट की कितनी है 50-50 में जा सकता है, सही होगा। थर्ड इज सम डॉग्स आर काउ, डॉग और काउ की रिलेशन कौन डिफाइन करता है, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में थर्ड स्टेटमेंट क्या नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, कंक्लूजन क्या होगा नेगेटिव, लेकिन ये तो पॉजिटिव कंक्लूजन ये नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है। थर्ड इज नो कैट आर काउ, कैट और काउ की रिलेशन कौन डिफाइन करता है, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। कैट की वैल्यू कितनी है 100 है। थर्ड स्टेटमेंट में पास कैट की सेकंड स्टेटमेंट में कैट की वैल्यू कितनी है 100, ठीक है। काउ की वैल्यू कितनी है 100 है, 100 में जा सकता है, ठीक है सही होगा। ऑप्शन 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 4 यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम सोफाज आर चेयर, ऑल टेबल आर चेयर, ऑल चेयर आर बेड, सेम एज that of last question. फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, चेयर। चेयर कॉमन होगा फर्स्ट और सेकंड में। सेकंड और थर्ड में ऑल टेबल आर चेयर, ऑल चेयर आर बेड, सेकंड और थर्ड में चेयर कॉमन होगा। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं कितनी होगी। सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150। अब कॉमन वर्ड की वैल्यू कितनी है 50, ये क्या होगा अनसर्टेन होगा, अनसर्टेन होगा। कॉमन वर्ड क्या है चेयर, चेयर के अलावा यानी कि टेबल और सोफा के जो भी कंक्लूजन होंगे वो गलत होंगे। टेबल और सोफा इधर गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी अनसर्टेन होगा तो टेबल और सोफा के कंक्लूजन क्या हो जाएंगे रॉन्ग। अब सेकंड और थर्ड में कॉमन वर्ड है चेयर, चेयर की वैल्यू कितनी है 50, वो क्या है सर्टेन है, ठीक है। अब क्योंकि सेकंड फर्स्ट और सेकंड अनसर्टेन है, सेकंड और थर्ड सर्टेन है, तो जो फर्स्ट और थर्ड जो होगा वो क्या होगा अनसर्टेन होगा। फर्स्ट और थर्ड अनसर्टेन होगा, ये क्या अनसर्टेन है, इट मीन्स कॉमन वर्ड क्या है चेयर, चेयर से चेयर कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन वर्ड चेयर गए। सोफा और बेड का जो भी होगा, सोफा और बेड गलत हो जाएंगे, सोफा और बेड, सोफा बेड गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास दो कंक्लूजन है। सम बेड्स आर टेबल, बेड और टेबल की रिलेशन कौन डिफाइन करता है, सम बेड्स आर टेबल, बेड सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड से अपने पास बेड की वैल्यू कितनी है सेकंड और थर्ड में 50-50 में चला जाएगा, ठीक है। टेबल की 100 थी 150 में चला जाएगा। सम बेड्स आर चेयर, बेड और चेयर की रिलेशन कौन डिफाइन करता है, बेड एंड चेयर, बेड थर्ड में अपने पास थर्ड स्टेटमेंट बेड और चेयर के लिए ऑल चेयर्स आर बेड, चेयर की वैल्यू कितनी है 100, 150 में जा सकता है, ठीक है। बेड की कितनी है 50 में जा सकता है। फर्स्ट और सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1 and 2 फॉलोज। ऑल जग्स आर मग, ऑल मग्स आर कप्स, ऑल कप्स आर स्पून, ऑल की वैल्यू कितनी होगी 150। कॉमन वर्ड इधर मग है इधर कप है, यानी कि इधर से अपने पास कंक्लूजन आएंगे जग और
कप के लिए, इधर से कंक्लूजन आएगा मग एंड स्पून के लिए, और इधर से कंक्लूजन अपने पास आएगा जग और स्पून के लिए। सारे के सारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही कंक्लूजन होंगे। सम की वैल्यू कितनी होगी? 50-50। ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50। अब सम कप्स आर जग, कप और जग की रिलेशन कौन डिफाइन करता है? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में जग की वैल्यू कितनी है? 100 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। कप की वैल्यू कितनी है? 50 में चला जाएगा, सही होगा। सेकंड, सम स्पून्स आर मग्स, स्पून की वैल्यू कितनी है? 50। स्पून और मग की रिलेशन कौन डिफाइन करता है? सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड, मग की वैल्यू कितनी है अपने पास? 100 में 150 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। स्पून की वैल्यू कितनी है? 50 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। थर्ड इज ऑल मग्स आर स्पून, मग और स्पून की रिलेशन कौन डिफाइन करता है? मग और स्पून करता है सेकंड एंड थर्ड। मग की वैल्यू कितनी है? 100 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। स्पून की वैल्यू कितनी है? 50 में जा सकता है, सही होगा। ऑल सम कप्स आर मग्स, सम कप्स, कप और मग की रिलेशन कौन डिफाइन करता है? कप एंड मग। स्टेटमेंट सेकंड, कप और मग। मग की वैल्यू कितनी है? 150 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। कप की कितनी है? 50 में जा सकता है, सारी की सारी सही है। ऑल फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम कैट्स आर रेड, सम रैट्स आर हैट एंड सम हैट्स आर बैट। सम की वैल्यू कितनी होगी? 50-50। फर्स्ट और सेकंड भी क्या होगा? अनसर्टेन होगा। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में अपने पास कॉमन वर्ड है रैट। सेकंड और थर्ड में अपने पास कॉमन वर्ड है हैट। इसकी भी वैल्यू 50-50 है। तो फर्स्ट और सेकंड अनसर्टेन है, ये क्या है? अनसर्टेन है, ये भी अनसर्टेन है। तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे? अनसर्टेन होंगे। अनसर्टेन होंगे इट मीन्स क्या है? जितने भी इधर से अपने पास आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से अपने पास आएगा रैट, कॉमन वर्ड है। कैट और हैट के जो भी सोल्यूशन होंगे वो सारे के सारे गलत होंगे। कैट और हैट गलत होगा, ठीक है। एक ये सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कंक्लूजन हो ही नहीं सकता, ये वैसे ही गलत हो जाएगा। सेकंड और थर्ड में कॉमन वर्ड है अपने पास हैट, यानी कि रैट और बैट के जितने भी सोल्यूशन होंगे, रैट और बैट के जितने भी सोल्यूशन होंगे सारे के सारे गलत होंगे। रैट और बैट ये भी गलत होगा। और फर्स्ट और थर्ड भी अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। कॉमन वर्ड कौन सा है फर्स्ट और थर्ड में? कॉमन वर्ड्स कट जाएंगे, रैट से रैट गए, हैट से हैट गए, यानी कि कैट और बैट। कैट और बैट के जो सोल्यूशन होंगे वो गलत होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे अनसर्टेन केस थे। कॉमन वर्ड्स के अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता, सारे के सारे गलत हो जाएंगे। सो नन फॉलोज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ऑल कप्स आर प्लेट और प्लेट्स आर ग्लासेस एंड सम ग्लासेस आर बाउल्स। कप्स की वैल्यू कितनी होगी? ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू होगी 50-50। अब कॉमन वर्ड फर्स्ट और सेकंड में क्या है? प्लेट्स। इधर प्लेट्स, कॉमन वैल्यू कितनी है? 50-50, ये क्या होगा? सर्टेन होगा। सेकंड और थर्ड में कॉमन वर्ड क्या है? ग्लास, वैल्यू कितनी है? 50-50, ये क्या होगा? अनसर्टेन होगा। ये अनसर्टेन होगा, ये सर्टेन होगा। सर्टेन होकर ये रिलेशन डिफाइन करेगा कप और ग्लास। ये अनसर्टेन होगा, सेकंड और थर्ड अनसर्टेन होगा, इट मीन्स कॉमन वर्ड क्या है? ग्लास। ग्लास को छोड़ के जितने भी रिलेशन होंगे वो गलत होंगे। प्लेट और बाउल्स के सारे स्टेटमेंट गलत होंगे। अब फर्स्ट एक सर्टेन है, एक अनसर्टेन है, तो फर्स्ट और थर्ड क्या होंगे? अनसर्टेन होंगे। ये क्या होंगे? अनसर्टेन होंगे, अनसर्टेन होंगे।
कॉमन वर्ड्स प्लेट से प्लेट गया, ग्लास से ग्लास गया, यानी कि कप और बाउल। कप और बाउल, कप और बाउल के जितने भी कंक्लूजन होंगे वो भी सारे गलत होंगे। कप और बाउल, कप और बाउल्स ये गलत हो जाएगा। प्लेट और बाउल्स के भी सारे रिलेशन गलत होंगे, प्लेट और बाउल्स इधर हैं, ठीक है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास है वैल्यू निकालते हैं। ग्लासेस और कप के बारे में रिलेशन अपने पास आता है फर्स्ट और सेकंड से। कप की वैल्यू कितनी है फर्स्ट में 100, 150 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। फर्स्ट और सेकंड में ग्लास की वैल्यू है 50, 50 में जा सकता है, सही है। थर्ड कंक्लूजन इज ऑल कप आर ग्लासेस। कप और ग्लास की रिलेशन अपने पास आती है फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट में कप की वैल्यू कितनी है 100, 100 में जा सकता है, बिल्कुल सही है। ग्लास की कितनी है 50, 50 में जा सकता है, बिल्कुल सही है। यानी कि स्टेटमेंट 1 और 3 इज द करेक्ट, ओनली 1 and 3 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सम मतलब 50-50, सम की वैल्यू विल बी 50-50। सारे के सारे स्टेटमेंट सम में दिए, यानी कि कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 होगी, 50-50 होगी, अनसर्टेन होगा, ये भी अनसर्टेन होगा, ये भी अनसर्टेन होगा, और ये भी अनसर्टेन ही होगा। फर्स्ट और सेकंड में कॉमन वर्ड है एलसीडी, यानी कि टीवी और एलईडी के सारे रिलेशन गलत होंगे। सेकंड और थर्ड में कॉमन वर्ड है एलईडी, यानी कि एलसीडी और बल्ब के सारे रिलेशन गलत होंगे। फर्स्ट और थर्ड में कॉमन वर्ड एलसीडी से एलसीडी गए, एलईडी से एलईडी गए, अपने पास बचा टीवी एंड बल्ब। टीवी और बल्ब के जितने भी कंक्लूजन होंगे वो सारे के सारे गलत होंगे। फर्स्ट है बल्ब और टीवी। बल्ब और टीवी का कोई हो सकता है? नहीं होगा। सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कंक्लूजन वैसे भी नहीं हो सकता। एलईडी और टीवी का कंक्लूजन होगा, एलईडी और टीवी नहीं, एलईडी और टीवी का भी कोई कंक्लूजन नहीं होगा। इट मीन्स नन फॉलोज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल टीचर्स आर लेक्चरर्स, ऑल लेक्चरर्स आर हेडमास्टर, ऑल हेडमास्टर्स आर प्रिंसिपल। ऑल की वैल्यू कितनी होगी 150। फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है लेक्चरर है, लेक्चरर कितनी है 50 और 100, यानी कि ये क्या होगा सर्टेन होगा, ये अपने पास सर्टेन केस होगा, और ये हमें वैल्यू देगा टीचर एंड हेडमास्टर की। सेकंड और थर्ड में कॉमन है हेडमास्टर, उसकी वैल्यू कितनी है 50 और 100, यानी कि सर्टेन होगा, और हमें कंक्लूजन देगा लेक्चरर और प्रिंसिपल पे, लेक्चरर पे और प्रिंसिपल पे। फर्स्ट और थर्ड भी क्या होगा सर्टेन होगा, लेक्चरर से लेक्चरर गया, हेडमास्टर से हेडमास्टर, अपने पास कंक्लूजन देगा टीचर्स और प्रिंसिपल के, ठीक है। लेक्चरर से लेक्चरर, टीचर और हेडमास्टर, हेडमास्टर से हेडमास्टर गया, लेक्चरर और प्रिंसिपल, और इधर अपने पास कंक्लूजन होगा टीचर और प्रिंसिपल से, ठीक है। सम की वैल्यू कितनी होगी 50-50। प्रिंसिपल और टीचर का रिलेशन कौन डिफाइन करता है फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। 50-50 कंक्लूजन हो सकता है। टीचर की वैल्यू कितनी है 100 है, 150 में जा सकता है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 50 में जा सकता है, ये सही होगा। सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन वैसे ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट अपने पास है सम हेडमास्टर्स आर लेक्चरर। हेडमास्टर और लेक्चरर के रिलेशन कौन डिफाइन करते हैं हेडमास्टर और लेक्चरर। स्टेटमेंट 2 में अपने पास हेडमास्टर की वैल्यू कितनी है 50 में जा सकता है, लेक्चरर की 100 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। नेक्स्ट अपने पास ऑल टीचर्स आर प्रिंसिपल। टीचर और प्रिंसिपल की रिलेशन कौन डिफाइन करता है फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट में टीचर की वैल्यू कितनी है 100 में जा सकता है, सही है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 50 में जा सकता है, बिल्कुल सही है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। These are some questions related to the syllogisms.